What's up? Are you ready for some more concept? Well, all right, it's called some basic principles of chemistry. I'm aware. Hey, that's what we call it commonly, right? इसमें हम लोग कुछ interesting चीज करने वाले हैं. We're gonna do ideas from. I'm looking for the chat window. There's the chat window. Hey Naruto, Raghav, how you doing? Good evening. Good evening. कैसे हैं सब लोग? We're gonna do things from solutions as well. You know how it is, right? हम लोग जो है molarity, molality, mole fraction. That's what this first part of mole concept is gonna be like. Yeah, look at that beautiful yellow text right there. Mole concept. आज हम लोग करेंगे cover ये. What a fascinating day yesterday was, right? काफी intense, बहुत नई नई चीजें आपकी लाइफ में हुई. नीट का काफी सिलेबस बदल गया. Now we're back to business as usual. Don't worry, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. In the coming week, we'll plan it out nicely for you. A lot of you have concerns over practical chemistry. हम लोग उसको cover करेंगे. We'll do salt analysis. That's the first part. थोड़ा सा उसका idea देना. और reduce it. Everyone, that's what's everyone. That is what is on everyone's mind. There is this idea of कि यार P block लगता है पूरा होगा ही नहीं. Yeah, looks like it. Looks like we'll confirm in a couple of days and we'll get back to you. ठीक है, we just getting our ducks in a row, making sure कि what we present to you is the real picture. जो सबसे सही है वही है, इसलिए हम लोग will take a couple of days time. ठीक है. All right. Good evening, everybody. Dr. Mahi, Jashan, Kanchan, Jaipoline. It's been a while. Ishant, Jack of all. Mole concept, Aisha, absolutely. Sarthak, yes. It's all right, Raghav. Please take care, man. Please take care. Don't worry about class and all. Health subject top priority. Please take care of your mother. I hope she feels better soon. Good evening, everybody. Let's get started right away. Sarthak, monkey again, monkey. All right, Simon, what's happening? Yeah, part one. इस पे हम लोग cover करने वाले हैं these ideas. We go with theory in the next 2-3 minutes and then we start the session right away. 2-3 minutes क्यों? क्योंकि theory ऐसे ही है. Look, percentage concentration terms. That's one of the things you're going to cover today. Percentage concentration can come in 3 ways. Yeah, if you are dissolving maybe a solid in a liquid, तो मतलब solid का volume is like almost नहीं होता है ना. Solid को तुम डालो volume बिल्कुल complete disappear हो जाता है पानी में. Right? You've learned this in 7th 8th grade. उस टाइप के solutions के लिए you express a concentration in these kind of terms. Mass of solute by volume of solution in 100 ml. But really think about it. Your definition is not this. The definition is the mass of solute that you dissolve in 100 gram or say in 100 ml of solution. 100 ml of solution, right? Definition है ये. Maths लगा के ये बन जाता है. After you put a little bit of maths to it, that's what you get. देखो, what is this? This is mass of solute in 1 ml of solution. जब आप किसी नंबर को डिवाइड करो, जैसे कि 4 ग्राम है 25 ml में, so when you do 4/25, you are finding out the mass in 1 ml of solution. Then you multiply with 100. ये तो मैथ्स हो गया, but definition क्या है? Actual definition है mass dissolved in 100 ml. ठीक है? Similarly, you have other terms. In that also you'll have volume dissolved in 100 ml. But maths डालो तो ये हो जाता है. Volume of क्या? हर जगह न्यूमरेटर में solute है, हर जगह डिनोमिनेटर में solution है. When you talk about these 3 concentration terms. Okay, तीसरा वाला भी आएगा. Mole fraction का idea, you know this, right? The concerned species के moles divided by total number of moles. That's what this is saying. The तीसरा term is this. This is the most straightforward one, mass by mass. Now this guy here is interesting, right? This is not dependent on temperature because temperature volume बदल जाएगा. अगर mass में mass करो तो temperature को कोई tension ही नहीं है. Again, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि the definition is in 100 gram or volume or whatever, you know. ये maths हम लोग लिखते हैं to get to that definition. Understand the small difference. I'll talk about this when we do questions. You'll see in all my questions, मैं first principle से काम करूंगा. That formula I may or may not use. We'll see. PPM है, कुछ और है. Good evening, कोई कुछ बोल रहे हैं. तो 25 के लिए syllabus same हो, किसको मालूम यार? I hope so. We'll see. Best mark, what's up? Okay, great. Thanks, man. Thank you for that, Beast Mark. Thank you for that, Beast Mark. Got the name correct. Thank you for that feedback, man. I hope that it helped. That was the main goal, right? इसलिए हम लोग तुरंत गए. Yesterday at 8:30, when we did the 8:30 session, some of you were very confident and Adil helped me out, said, yes, this is happening right now. It's live, it's real. We figured it out and there we are. You know, that's what Aakash always does. We figure things out really quickly. Khair, back to this session. Last slide, then we start with questions. It's been a couple of minutes, right? Last slide. देखो, इधर भी जो definitions दिए हैं. What is part per million? What does it mean? It means simply this. One part of something, of usually the solute, in a million parts. Million is 10 power 6 parts, right? Of solution. ठीक है? इसमें भी solution ही है. Now, here's the thing. इस सेम चीज को करने के लिए we do these formulae and multiply with 10 power 6. When we do the actual numerical, you see this. मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूं because sometimes students are like, hey, this is a formula. How are we doing something different? यार, formula is direct from the definition. हमारा focus is definition. फिर formula तो आप लोग कर लोगे. चलो एक सवाल देखते हैं quickly without any further ado. Let's start the question.
आरती एंड कांचन जी प्लीज अभी सवाल कर लेते हैं, ठीक है, सेशन हो गया है शुरू। 5.9 ग्राम ऑफ HCl is dissolved in 45 ml of water. Calculate the percentage of HCl. W by V percentage in the solution to the density HCl is 1.18 gram per centimeter cube. Now you will see कि यहां पे हमने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है टेल को। क्या? Now I'm focusing on questions that don't have options because mole concept is a beautiful chapter and the more questions you solve without the help of options, the better your life is going to be. And इसलिए maybe this may be slightly harder than the other chapters for you right now because you're used to options. हर चीज में options होते हैं। जब तक मैं ये ज्ञान दे रहा हूं आप लोग क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं करते? What do you think? आंसर क्या है? ppm is same as percent. Simon, not really, not really. In a way, theoretically, you could make it same as percent, but it's per million. Percent is per 100, per ppm is per million. Okay. एक बार से परसेंटेज प्योरिटी करेंगे करेंगे अभिषेक, सब करेंगे, डोंट वरी अबाउट ऑल दैट। पहले लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आज का फोकस है क्वेश्चन सॉल्व करना मोल कॉन्सेप्ट में, ताकि आप लोग इतने अच्छे हो जाएं मोल कॉन्सेप्ट में कि दैट यू नेवर हैव टू स्टडी इट अगेन। दैट्स द गोल। वी विल डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बाद में करेंगे। गुड इवनिंग सूरज, सवाल करो सवाल करो। गाइस व्हाट्स हैपनिंग? अब इज इट हाउ इट इज कि ऑप्शंस के बिना सवाल नहीं होता है? खैर, हियर यू गो। परसेंटेज का इसका सोल्यूट मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है। व्हाट इज परसेंटेज W by V? मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नरूटो कहां गए? कहां गए यूजुअल सस्पेक्ट्स? वेयर आर यू गाइस? आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सब लोग बोले बहुत आ गए थे। अब सवाल कौन करेगा दोस्तों? सवाल करते हैं। या you want me to solve this for you? Is that what you want? We could do that. We could do that. And guys, Aarti Kanchan, be careful. हाँ, इंटरनेट पे ओपनली चीजें बात करना is not safe. It's a public place. यार, be careful. Yeah, your private stuff. Don't put it out there. It's risky. Not safe for you guys. All right, try करो. Percentage W by V. इसका बेसिस क्या होगा? नाउ इन एवरी क्वेश्चन सिंस द फर्स्ट वन आई एम सॉल्विंग विद यू पर्सनली, हर मोल कॉन्सेप्ट के सवाल में हम लोग डिफाइन करेंगे बेसिस। बेसिस मतलब व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज हर सवाल को आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं। ये पहला वाला सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है, मेरा तरीका, व्हिच इज नॉट अ फैंसी वे। टेक्स्ट बुक में स्टैंडर्ड में यही तरीका होता है। बेसिस मतलब मैंने लिया बेसिस 45 ml ऑफ वाटर, यानी कि दिस इज माई फोकस। अब 45 ml वाटर में इट सो हैपेंस कि 5.9 ग्राम HCl है, वो तो बोला गया है। सो दिस हैज दिस मच ऑफ HCl। नाउ HCl इज अ लिक्विड। नाउ देखो, जो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है इसमें दोनों होगा लिक्विड, राइट? विच वंस? HCl एंड वाटर। तो हमको निकालना है इसका वॉल्यूम क्या है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। इसका वॉल्यूम क्या है? वंस यू गेट इसका वॉल्यूम देन लाइफ बिकम्स इजी, राइट? व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc, यू नो दिस। तो इसमें कोई टेंशन है ही नहीं, मतलब कि इसका जितना मास होगा उतना ही वॉल्यूम होगा। बट इसका वॉल्यूम मुझे निकालना पड़ेगा। HCl का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? देखिए, डेंसिटी दी हुई है HCl की, तो डेंसिटी इज सिंपली व्हाट? इफ आई एवर टू डू दिस सिंपल कैलकुलेशन, दिस वॉल्यूम इज गोना बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मुझे इसका वॉल्यूम निकल गया। अब अगर इसका वॉल्यूम निकल गया तो टोटल वॉल्यूम भी पता चल गया। टोटल मास है, टोटल वॉल्यूम है। टोटल मास कितना था? टोटल मास है 5.9 ग्राम, है ना? टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 45 प्लस 5 यानी कि 50 हो गया, मिल गया आंसर, है ना? 5.9 डिवाइडेड बाय 50 इनटू 100 क्योंकि दिस इज पर ml, ओके, एंड इनटू 100 मेक्स इट परसेंट। आंसर क्या हो गया? 11.9%। अच्छा, आप लोग 53 बोल रहे हैं। साइमन, यू आर सेइंग 53, ओके। 45 10 पावर माइनस 3 वॉल्यूम। हाँ अभिषेक केशरी, नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लिटिल बिट ओवर हियर। हर जगह आपको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इनफैक्ट जहां मिलीलीटर रहने दो, लास्ट स्टेप में आप ये सब्स्टिट्यूशन करना। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट अभिषेक दैट यू पॉइंट आउट। 53.1 कैसे मिला था? 52 53, आई डिडंट अंडरस्टैंड ये क्या था। परसेंटेज ऑफ HCl, ठीक है, 5.9 ग्राम। हम लोग मोल वोल नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे, मोल वोल कुछ नहीं है यहाँ पे, बस मास और वॉल्यूम है। 53 क्या आ रहा है यार? आप लोग का समझ में नहीं आया मुझे। व्हाट इज 53? 50 ml कांचन, आई एग्री। 50 ml इज द वॉल्यूम, ठीक है? वॉल्यूम अगर निकल गया तो 5.9 by 50 is going to be the percentage the weight by volume times 100 is 11.8। हमने कुछ गड़बड़ी किया? कैलकुलेट ही पढ़ाया, सीधा साधा लग रहा है मुझे। 5.9 by 50 मतलब 5.9 into 2, है ना? तो हो गया 18, 11.8। अभी what's the math here? 13, जेपलिन says 13। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट में निकल गए सबकी हवा। अच्छा, इट्स ओके मंकी, डू यू सी द स्टेप्स? टेल मी कहां पे मैं हेल्प कर सकता हूं आपकी। Kanchan, absolutely, 50 ml is right. But what is the answer? How do you guys do this? Did you follow what I did? मैंने कुछ जल्दी नहीं की, बहुत प्यार से कही आपने। क्या किया? देखो, बेसिस लिया। I figured कि 45 ml of water होना चाहिए। Because ये सवाल में दिया है 45 ml में होगा 5.9 ग्राम of HCl। अब 5.9 ग्राम HCl है,
उसका वॉल्यूम क्या होगा, बिकॉज द वॉल्यूम्स आर एडिटिव, या डिनोमिनेटर में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इसको फिर से अगर डिटेल में लिखना चाहूं, दिस इज सिंपली क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस HCl, है ना। तो ये तो नोन है, ये हमको पता करना है, तो इसीलिए मैंने ये कसरत की, वॉल्यूम ऑफ HCl यहां निकाला, ओके, दोनों को ऐड किया, डिनोमिनेटर में डाला। हाँ फॉर्मूला से आ जाएगा, बट फिर दोस्त लोग को 53 क्या आ रहा है, कुछ लोग 53 बोल रहे हैं, 53 कहां से आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू फॉलो दिस अ लिटिल बिट। हाँ how are we getting this, how are we getting these funny numbers, give me a bit of a hint. Did you guys get this question? समझ में आया कि नहीं आया? अभी now I'm a little scared कि क्या हो गया, सब लोग इतना अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हैं? Are you guys, do you guys need more revision of mole concept? I'll do it. I thought कि all of you are already good with this and we'll do it. But अगर कोई doubt है तो बोल दो. I don't mind taking as much time as we like because this is not a PYQ session. हमारा focus है सीखना, ठीक है? Through questions. Mole concept तो शुरुआत में होता है. This is my favorite topic. क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेसिक अरिथमेटिक है और उससे आसानी से मार्क्स पक्का मिल जाएंगे टेस्ट में, एंड मजा भी आता है करने में. वी कैन डू द सेम क्वेश्चन इन 3-4 वेज एटलीस्ट हर समय. मैंने आपको एक तरीका है, मे बी अनदर वे, बट तरीका कोई भी आप यूज करो, यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू फॉलो स्टेप्स ध्यान से. अगर कोई भी स्टेप स्किप करोगे तो बहुत अजीब सा नंबर आ जाएगा, ठीक है. अभिषेक फॉर्मूला तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सीधे, राइट हियर. परसेंटेज W by V यहां पे दिया ना, परसेंटेज W by V इज मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूट तो वही रहा. अब ये सोल्यूशन का जो है भाई, सोल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. यहां पे कुछ दिया नहीं है, 5.9 ग्राम HCl दिया है, बट देखो डेंसिटी HCl की दी हुई है, एंड दिस इज अ हिंट टू टेल यू दैट HCl इज लिक्विड. मैंने पहला ही सवाल में थोड़ा गूगली डाल दिया. आई अंडरस्टैंड आप लोगों ने क्या किया, आई अंडरस्टैंड आप लोगों ने क्या किया. यू डिडंट कंसीडर दिस 50 वाली चीज एंड यू थॉट कि अच्छा 5.9 by 50 हो जाएगा. नहीं, 5.45 हो सकता है वो होगा. नहीं, द क्वेश्चन इज इजी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये जो शब्द है ना उसमें कुछ और चीजें छुपी हुई हैं, लाइक द फैक्ट दैट HCl इज अ लिक्विड. ये ऑब्वियस चीज है, बट सवाल करते वक्त कभी कभी आदमी भूल जाता है. सो यू गॉट टू बी केयरफुल अबाउट दिस. आइडेंटिफाई. सो लेट मी रिकैप एवरीथिंग, पूरा रिकैप करते हैं जल्दी से, ठीक है. स्टेप 1, आइडेंटिफाई दैट HCl इज अ लिक्विड. स्टेप 2, ये जो सॉल्यूशन था, ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन है, इसमें रियलाइज करना कि न्यूमरेटर में है मास ऑफ सोल्यूट यानी कि HCl, डिनोमिनेटर में है मास ऑफ सोल्यूशन. This is the second step, that means you need to find out the volume, denominator volume of solution. So you need to find out the volume of solution. अभी आपके पास तीसरे स्टेप में सिर्फ 45 ml है, तो कितना वॉल्यूम होगा HCl का वो निकालिए डेंसिटी का. HCl density is given to you, right? Divide this 5.9 by rho of HCl will give you this density. कैसे? Volume by mass is equal to 1 by density, या फिर अरे यार density is equal to mass by volume, यही मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है. Nothing went quickly, बहुत आराम से प्यार से हम लोग कर रहे हैं. फिर उस बाद डालो, मिल गया 11.8. ओके, हो गया, गुड. चलो, यस डाउट आरती, चलो अगला सवाल करते हैं. 0.01 moles of glucose is dissolved in 100 ml of water. Calculate the strength of the solution. Strength का क्या मतलब होता है? डेफिनेशन आपको मालूम है. Strength मतलब its concentration in gram per liter. अब हम लोग जो थे ना, एक दोस्त हमारा बोल रहा था 10 power -3 लीटर वॉल्यूम, अभिषेक बोल रहे थे लास्ट वाले में, तो सी You are absolutely correct, but उसमें वो जरूरत नहीं थी because denominator में था 100 ml of solution. Like here, now what is the question asking for? Question is asking for strength of the solution. Strength का यूनिट होता है ग्राम पर लीटर. मतलब अब तो आपको निकालना पड़ेगा भाई लीटर में. अब you cannot deal with ml. और you say कि ठीक है, I will have to talk about 1000 ml. ठीक है, I'll have to talk about 1000 ml, है ना. यही है यहाँ का कैच. So ये है मेरा बेसिस. बेसिस क्या है? 1000 ml of solution, and this is the beautiful thing. यहां पे हम लोग जो है वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट है सॉलिड, ग्लूकोज होता है सॉलिड. ये तो आप जानते हैं, आप तो बायो के स्टूडेंट्स हैं, आप तो मेरे से अच्छी तरीके से ये जानते हैं. तो ये हो गया सॉलिड. तो सॉलिड को मैंने पानी में डाला, वो हो गया पूरा, हट गया. सर मेरे स्कूल में ये चैप्टर चल रहा है, अरे वाह कांचन, दैट्स गुड, दैट्स ब्यूटीफुल. ठीक है, ये वाला भी मैं हेल्प करूं. स्ट्रेंथ का यही है यूनिट, ग्राम पर लीटर. ठीक है, तो बेसिस है, ले सकते हो या तो 100 ml ऑफ वाटर या तो 1000 ml सोल्यूशन, दोनों चीज ले सकते हो. देखो 3 तरीके करने के इसको. मैं लेट्स फोकस ऑन द इजीएस्ट वन. ये 1000 वाला हम लोग हटा के सबसे सिंपल तरीका लेते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में दिया है 100 ml, तो चलो लेट अस टेक दैट एज द बेसिस. नाउ ग्लूकोज का मास क्या होता है, क्योंकि हमको अब क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट मोल्स टू मास, क्योंकि स्ट्रेंथ है ग्राम पर लीटर में. ग्राम किसका? सोल्यूट का. लीटर किसका? सोल्यूशन का, है ना. ये है कंसंट्रेशन टर्म, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का मतलब. ओके, पॉइंट 1,
एब्सोल्युटली राइट, मंकी एंड एवरीबॉडी एल्स, एक्सीलेंट। अरे यार यू गाइस आर ब्रिलियंट। नीटिफाइड सूरज, सब लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कांचन 180 के अभिषेक केशरी सेज इज द मास, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। C6H12O6 ग्लूकोज का हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96, कैसे 16 इंटू 6 मतलब हो गया 180 ग्राम पर मोल। अच्छा, बट मोल्स कितने हैं? देखो 0.01 मोल है कितने में? 100 ml में, है ना? तो हो गए कितना इसका मास? 1.8 ग्राम ग्लूकोज कितने में? 100 ml पानी में 1.8 ग्राम ग्लूकोज हो गया। हाँ 180 ग्लूकोज। ओके सर, ये 11th का कॉन्सेप्ट है या 12th? डॉक्टर माही जी ये 11th का कॉन्सेप्ट है, पहला चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का, बट नॉर्मली एनसीईआरटी में ये है 12th स्टैंडर्ड में सॉल्यूशंस में, तो दोनों में बोल सकते हैं, 11th और 12th दोनों में हो सकता है, बट हम लोग साथ में सीख लेंगे, एक बार सीख लेंगे। एक एक न्यूमेरिकल ऐसे प्यार से चुना है कि क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है? इट्स ओके माही, ये 11th में, सो नॉर्मली जेई में पहला चैप्टर यही पढ़ाया जाता है, मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स, एंड ये तो सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री है ना, वही पहला ही चैप्टर 11th का। बट डरिए मत, ये मोलैरिटी वाले टर्म्स आर इन 12th स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में। हम ऐसा बस दोनों साथ में कर रहे हैं, ठीक है? कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई एम टीचिंग यू द थियरी एज वेल ऑन द साइड, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा बेसिस, ये हो गया दिस थिंग, दिस द मास। अगला स्टेप क्या है? कोई मुझे आंसर बताओ। 1.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ml मतलब कि 18 ग्राम पर लीटर। अरे ये क्या चमत्कार हो गया, ये क्या चमत्कार हो गया? इस चैप्टर फॉर्मूले ज्यादा है। नहीं अभिषेक, कोई फॉर्मूले नहीं है, ट्रस्ट मी। 3-4 फॉर्मूले यार, ओके। थर्मोडायनेमिक्स में कितने फॉर्मूले, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें डेफिनेशन याद करना जरूरी है, फॉर्मूला से ज्यादा डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन याद हुई तो फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, है ना? एंड यू आर वेरी गुड एट रिमेंबरिंग दीज डेफिनेशन। आप तो बायो के स्टूडेंट्स हैं, यू स्पेंड सो मच एफर्ट स्टडिंग मच हार्डर थिंग्स। ये तो आसान चीज है, थोड़ा सा अरिथमेटिक है, थोड़ा सा अरिथमेटिक। अब हाउ डिड आई कन्वर्ट 1.8 ग्राम इन 100 ml टू 18 ग्राम पर लीटर? देखो 1.8 ग्राम इन 100 ml, बट मुझे चाहिए 1000 ml, सो आई विल मल्टीप्लाई विद 1000 ml ओवर हियर, क्योंकि मैं ml को कैंसिल करना चाहता हूं। बट अगर मैंने 1000 ml ऊपर डाला, मतलब यूनिट डाला, तो डिनोमिनेटर में मुझे डालना पड़ेगा 1 लीटर, है ना? तो क्योंकि नाउ आई हैव मल्टीप्लाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1। कैसे? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है? तो मैंने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किया है 1 से मल्टीप्लाई। ये है कलाकारी अभिषेक। यही जरूरी है करना यहाँ पे, ठीक है? मोल कॉन्सेप्ट में sometimes students get a little scared because ये सब थोड़ा तिगड़म करना पड़ता है, ठीक है? You gotta get a little crafty. So when you do this, देखो ml कैंसिल हो गया, but this is also straightforward because ml should not be in the denominator. I need liter in the denominator. क्यों? That's the definition, right? So hence I know somehow I have to get liter in the denominator. How do I get liter in the denominator? If I'm dividing by 1 liter, I have to multiply with 1 liter, but 1000 ml. ml हो गया कैंसिल, ये हो गया ये। कहां देखो अभिषेक, बिना किसी फॉर्मूले के हमने किया 18 ग्राम पर लीटर। Where is the formula, bro? No formula, है ना? है ना? नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई is not about quantity, it's quality concern. So अगर लग रहा है कि बहुत स्ट्रेसफुल है तो you figure out something that works for you. Okay? Is this question okay, guys? ये समझ में आया? How I got 18 gram per liter? Yeah? Is this okay? Yeah? There is no fun fixed answer for this, Kanchan, कि कितना टाइम लाइफ में पढ़ना चाहिए, right? Some people make do with just 1 hour of study in a day. Some people need 10 hours. It's all right. That the number is not important. The main thing is that you don't get stressed out while doing it and you enjoy the process. Yeah, because you got to live in the present and focus यही है कि जो अभी कर रहे हो उसमें मजा आना चाहिए, तभी तो आगे नीट वीट क्लियर होगा, डॉक्टर बनोगे। ये सब चीज बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। Right now, you must enjoy what you're doing right now. ठीक है? This question is okay. Let's go to the next one. सर के डेली क्लास होगी? अरे सिमरन डेली तो होती है, डेली मतलब हफ्ते में 4-5 दिन होती है, बट ऑलमोस्ट डेली है यार। 2 दिन छुट्टी मिलती है मुझे, if you are asking me that question. ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। Calculate the molarity of H plus ions in a solution of H2SO4 prepared by dissolving by 49 gram of H2SO4 in 250 ml of water. अच्छा, हमको निकालनी है molarity of H plus ions. molarity का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख देता है, ये है मोलैरिटी, आ गई आपके सामने। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाय द टोटल वॉल्यूम इन लीटर। यहां पे कुछ 100,000 मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है? 100 तभी मल्टीप्लाई करना होता है जब परसेंट का आइडिया होता है। ओके, सो हियर व्हाट आई एम डूइंग पैरेलली टू डूइंग दिस क्वेश्चंस इज टीचिंग यू द थ्योरी यार, इनसाइड आउट बेसिकली, है ना? 2 2 2 2 2, अरे बाप रे, लव इट लव इट। यस अविका, आई अंडरस्टैंड, बट डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स का भी डर बहुत दूर भाग जाएगा जब हम लोग साथ पढ़ेंगे। निखिल इज सेइंग 2,
सूरज सिंह 2, माही सिंह 2, शालिनी सिंह 2। अरे दो मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, आपका नाम लिखना चाहिए बट आपके नाम लंबे हैं, तो आई विल जस्ट पुट टैली मार्क्स। निखिल, सूरज, माही, शालिनी, कांचन, फीनिक्स, फीनिक्स, जेपलिन, फीनिक्स। आप ढूंढो, इंटरनेट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ढूंढिए आप। ठीक है, हियर्स द डील, राइट। आई थिंक आप लोगों ने थोड़ी जल्दी की है, थोड़ी सी जल्दी की है, इसलिए जो नेक्स्ट लाइन मैंने यहां पे लिखी है, आरती रुको यार, 1 mole of H2SO has 2 mole of H plus ions, या 1 mole has 2 mole of H plus ions। लगता है आप सब लोग ये वाली छोटी चीज भूल गए, बट अदरवाइज यू डिड अ गुड जॉब। देखो, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H plus ions विल बी द मास, ओके, जो था 49 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। आई हैव डन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 2, क्योंकि ये 2 मोल H प्लस आयन है। अब ये तो हो गया कितना, दिस इज जस्ट 1। अरे ये तो टोटली एक ही मोल हो गया, बट वॉल्यूम है 250 ml। अच्छा, व्हाट डू आई डू नाउ? Now the same thing, I cannot have ml in my solution, so I make it into liter. How did I make ml into liter? Same कहानी की, multiply by 1000 divide by 1 liter। ये हमने लिखा नहीं, लिख देते हैं, ध्यान से करना चाहिए ना, लिख देते हैं। तो ये करने के बाद देखो ये सब तो हो गया कैंसिल, और बच गया नंबर 4, है ना, नीटिफाइड। अभिषेक, आपने थोड़ा उल्टी तरफ डायरेक्शन में गड़बड़ी कर दी, बाकी लोगों ने उल्टे डायरेक्शन में, थोड़ा सा मैथ्स का हो गया, बट इट्स ओके, डोंट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मोल कॉन्सेप्ट में जल्दी से ज्यादा ध्यान से करने वाली चीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूं जल्दी मत करो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ क्विक आंसर। मैं आपको शुरू में बोल दिया था, दिस इज अ टीचिंग सेशन, इट्स अ प्रैक्टिस सेशन। पीवाईक्यूज में जल्दी तुरंत आगे से आगे बढ़ के करना है। अब देखो, मैं तो इसमें ऑप्शंस भी नहीं दे रहा हूं आपको, आपकी लाइफ और मुश्किल कर रहा हूं, तो आराम से करिए, बट वी गॉट टू डू इट करेक्टली, ओके, ध्यान से करने वाली चीज है। इट्स ओके अभिषेक, नो प्रॉब्लम। कोई डाउट्स है हाउ द आंसर इज 4? एनी डाउट्स गाइस, एनी डाउट्स? You'll see that in each of these questions we are addressing just one simple point, and उसको हम लोग डिटेल में जाके देख रहे हैं, ठीक है, and that's what we're going to do later on as well. Next question, calculate the mole percentage, अच्छा, mole percent, okay, of CH3OH and H2O respectively in 60% by mass aqueous solution of CH3OH। आगे का वो वाला 4 था, not 2, okay, because you have 2 moles of H plus ions and 1 mole of H2SO4। ध्यान से करने वाली चीज। Calculate more percentage of these guys in percent, 60% by mass is same as W by W। This is the same thing as W by W percentage, ठीक है। बेसिस इसका क्या लोगे आप? इस टाइप के सवाल में ऑलवेज टेक बेसिस एज 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह मैं बेसिस बोल रहा हूं, शुड बी 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि मुझे उसी के बेसिस पे आई कैन फाइंड आउट मोल परसेंटेज ऑल्सो, क्योंकि 100 ग्राम में कुछ मास होगा पानी, कुछ मास होगा CH3OH, दैट वी कैन गेट फ्रॉम दिस 60%। वंस वी डू दैट, मास से मोल निकालना तो बहुत डायरेक्ट चीज है, मास डिवाइड बाय मोलर मास, दैट्स इट। 60 ग्राम विल बी इनिशियल मास। अभिषेक, एक्सीलेंट वर्क। 60 ग्राम ऑफ व्हाट? इसका मतलब होगा, थैंक यू अभिषेक फॉर दैट, 60% मास मींस 60 ग्राम ऑफ मेथनॉल। ये क्या है? ये है मेथनॉल, राइट, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है? बाय सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर लग रहा है ऑब्वियस चीज है, इट्स ओके, जरूरी चीज है, ऑब्वियस भी है, जरूरी भी है। व्हाट यू डू हियर, द नेक्स्ट पार्ट इज कि देखो पानी का मास कितना होगा। अरे पानी का मास तो 100 माइनस 60 होगा, यानी कि 40 ग्राम होगा। सो इन दिस होल सॉल्यूशन यू हैव 60 ग्राम ऑफ मेथनॉल एंड 40 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब देखो, इससे आप लोग निकाल सकते हो मोल परसेंटेज। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, यहां से तो शुड बी डूएबल, राइट, ट्राई इट आउट। मोल फ्रैक्शन निकाल लो, फिर मोल परसेंटेज मतलब मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई विद 100। व्हाट इज मोल परसेंटेज एनीवे? इट इज मोल फ्रैक्शन टाइम्स 100, राइट, दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। चैट बहुत शांत हो गई, लगता है आप लोगों को मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वी आर हियर। कौन सा फॉर्मूला बताऊं? फॉर्मूला तो है ही नहीं ना, मोल किस चीज का फॉर्मूला अभिषेक जी? सो इफ यू फील दैट देयर इज अ फॉर्मूला दैट्स होल्डिंग यू बैक, दैट्स अ मेंटल ब्लॉकर, ओके। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस चैप्टर में फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम बीइंग वेरी रियल विथ यू। व्हाट फॉर्मूला आर यू टॉकिंग अबाउट? देखो, निकालो मोल ऑफ CH3OH। लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप, आई विल हेल्प यू विद दिस आल्सो। पहले निकालो मेथनॉल का मोल। मेथनॉल का मोल हो गया 60/32। हाउ इज इट बाय 32? मेथनॉल का मास क्या होता है? 12 + 4
प्लस 16 यानी कि हो गया कितना 20 प्लस 12 32 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ मेथनॉल। और पानी का तो 18 ग्राम पर मोल है, ठीक है। इस हिसाब से मैंने मोल लिख दिया, ये है ना। मोल परसेंटेज इज जस्ट मोल फ्रैक्शन इनटू 100। मोल फ्रैक्शन क्या क्या मतलब हुआ, इसके इंडिविजुअल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल क्या हो गए, देखिए ध्यान से, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द नंबर, जो फ्रैक्शन है मैं एज इट इज रख रहा हूं, आई एम नॉट टचिंग एनीथिंग, राइट। लाइफ इज इजी दैट वे। तो ये लिख लिया हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब ये लिखो 1, ये लिखो 2, ये लिखो 3। सो 1/3 एंड 1/2, दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फॉर। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, बन जाएगा मोल परसेंटेज, है ना। दैट्स ऑल यू गॉट टू डू। सो मोल परसेंटेज क्या होगा अब बताओ। सारा तो हमने सॉल्व आपको कर दिया है, लास्ट बिट थोड़ा कैल कर लो। कैलकुलेटर यूज करना है तो कर लो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, राइट। सो बेसिकली व्हाट यू गेट इज 60/32। 60/32 कितना होता है, 8 और 15, राइट। 4 से डिवाइड करो, इसको क्या होता है 20/9। सो यू गेट 15/8 डिवाइडेड बाय 15/8 प्लस 20/9। और ये वाला क्या होगा, पानी का, पानी का होगा जो भी होगा 100 माइनस विल गिव यू दैट 0.36। थोड़ा ध्यान से करो, लेट्स डू दैट। numbers okay, number doesn't matter, but the main thing is process में कोई डाउट है, did you guys follow this? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, right? The deal with mole concept is that it may look a little scary but it's very benign, it's very chilled out, right? बहुत ही chilled out session है। तो 15/8 divided by 15/8 plus 20/9। अच्छा, ये हमको थोड़ा और ब्रैकेट डालना पड़ेगा कैलकुलेटर में ठीक है। So what do you get here is divided by this, you get 50 something percent and 40 something percent, right? 45 is what I am getting, right? 45, so what you get here is 27/50, 50 कितना मिल रहा है इसको 59, right? 27/59, which is approximately, which is exactly, if you want to know number, 45.7%। ठीक है, cool। डॉक्टर माही, परसेंट 200 से ज्यादा, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता ना, परसेंट मतलब पर 100। मे बी मैथ्स में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई, बट थैंक यू फॉर दैट आंसर। देखो, मोल परसेंटेज इज दिस वैल्यू विच इज मोल फ्रैक्शन टाइम्स 100, है ना। दैट्स ऑल वी हैव डन हियर, ठीक है। ये लास्ट वाला पार्ट अगर मुश्किल लगा डोंट वरी अबाउट, बट रेस्ट ऑफ इट इज ओके। ये सब जो प्रोसेस है, ये स्टेप्स, इज दिस ओके? क्योंकि नीट में इस टाइप की चीज आने के चांसेस कम है। लेट्स फोकस ऑन व्हाट विल मोस्ट लाइकली कम इन नीट। Is this okay? And the numbers will be easier. आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना पड़ेगा, राइट। सो हियर जो मेरे सर के ऊपर है, that will be easy to do. Is this all right? यहाँ पे जो सब चल रहा है, is that all right? Yeah? बहुत शांत है चैट। I get it. Now I see the true fear of math from you guys. अगला सवाल देखते हैं। What is the quantity of water in gram that should be added to 16 gram of methanol to make the mole fraction of methanol 0.25? ये try करो। Here the maths is not very scary and you can do this with just a little bit of fractions. What's up, Hemani? How you doing? Aarti, ये वाला try करो। Good evening, Srishti. How you doing? What is the quantity of water in gram that should be added to 16 gram of methanol to make the mole fraction of methanol 0.25? Basis क्या लोगे? 16 gram of methanol is a safe basis to take. Why? Why? Because यही तो हमारा फोकस है कि इतने में कुछ पानी ऐड करना है। I'm adding X gram of water to this. Okay. To get the mole fraction to be 0.25, mole fraction क्या होता है? The number of moles of methanol divided by the total number of moles. Total moles of what? Methanol plus water. है ना? Hey Swati. So all you've got to do here is set up a simple, nice, peaceful equation. 44 grams, Nikhil, that's what you think? Okay, thanks for your answer. Let me write that down quickly over here. Okay, ठीक है। So first, मोल निकालना पड़ेगा मेथनॉल का। मेथनॉल का मास होता है 32, we just found that out, right? तो मोल फ्रैक्शन, इसका नंबर ऑफ मोल दोगे 0.5। हाउ इज इट 32? वो तो कर सकते हो कैलकुलेट ना। 12 प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 16, दैट्स इट, दैट्स 32। ठीक है, कूल। सो नाउ आई राइट डाउन द एक्सप्रेशन। हिमानी, यस फॉर श्योर। माही, यस 0.5। Which part do you want me to repeat? So if you guys want me to repeat something, you gotta be a little more specific, right? What do you want me to repeat? That will be helpful. 27, beautiful, neatified. लॉक कर दिया जाए 27 ग्राम्स को एंड सोल्ड। गुड जॉब neatified. Yeah. हिमानी, what do you want me to repeat? आप थोड़ा बताइए तो। Wow, Swati, you're from class 8. That's beautiful.
You should be able to do this also. I feel I'm not messing with you. Really, आप भी ये कर सकते हैं. स्वाति, निखिल, absolutely right. 27 ग्राम, कांचन 27 ग्राम. हिमानी, जो आप चाहती हैं हम रिपीट करेंगे. पूरा सवाल एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है? But here's the expression that I made. Notice that I did not use 0.5. I have used fractions everywhere. That makes life easy. And since हम लोग फ्रैक्शन से कर रहे हैं, तो स्वाति also will be able to solve this, right? स्वाति, this is a definition, okay? Mole fraction is mole of CH3OH divided by total number of moles. अब mole क्या भला होती है? Yeah, Swati may not know what mole is. Okay, mole is the mass divided by, I can't explain what mole is right now, Swati, sorry. That'll be too long a session for us to get into, but it's beautiful that you're here checking us out. Thank you. Yes, Abhishek, absolutely right. Answer is 27, but how? देखो, ये है मोल फ्रैक्शन, मोल नंबर ऑफ मोल्स मेथनॉल के. x लिया मैंने मोल्स ऑफ वाटर, दैट आई डोंट नो, प्लस हाफ इज इक्वल टू 1/4. हाउ 1/4? 0.25 1/4. इफ यू डू एवरीथिंग इन फ्रैक्शंस, देखो इतना सिंपल सा सुंदर सा इक्वेशन आ जाता है. देन यू गेट x इक्वल टू 3/2. देन मास ऑफ x इज 3/2 इंटू 18 ग्राम पर मोल, है ना? ये है मोल, मोल मोल हो गया कैंसिल, बच गया 3/2 इंटू 18, 27 ग्राम. Excellent work everybody. Jashan, Abhishek, Kansan, Nikhil, Neetified. It makes you very happy when you guys get answers. It doesn't matter the answer is right or wrong. It makes you very happy, really. Jepuli, that means you're trying. That's what's important to me, that you're trying. Okay. Himani, क्या पार्ट आप चाहती है मैं रिपीट करूं? Was this okay? अगर इससे पुराना वाला सवाल था, I suggest कि एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, because in the interest of the people watching it right now and also will watch it later, वो पूरी चीज रिपीट करना will be a little bit difficult. I hope you understand. आप प्लीज वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा. I've repeated the same thing 2-3 बार. You can maybe just rewind and check it out. चलो, ppm वाला concentration term देखते हैं. Calculate the mass of a solvent in 6 ppm solution of a drug if the mass of the solute is wow. So ppm is usually used to make when you have very scary thing like something that's very potent. बहुत थोड़ा सा आप डालना चाहते हो, parts per million, मतलब मिलीग्राम्स इन लीटर, बहुत थोड़े क्वांटिटी से काम चल जाएगा. केमिकल्स कैन बी स्कैरी. ओके, दैट्स व्हाट विल बी हियर. यू आर हैप्पी? दैट्स ग्रेट कांचन, दैट्स ग्रेट. ओके, कूल. सो हाउ डू यू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? इसका बेसिस लेट्स टेक इट एज 6 ppm इटसेल्फ, क्योंकि ये तो दिया हुआ है राइट सवाल में. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6 ppm? अभिषेक, जरूर आ सकते हैं, तभी तो हम कर रहे हैं, बट आपके एग्जाम में यही डिफरेंस होगा कि यू विल हैव ऑप्शंस. आपके एग्जाम में ऑप्शंस होंगे. ओके, मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं बिकॉज एवरीथिंग आई हैव टेकन इज फ्रॉम द नीट सेक्शन ऑफ इट. मैं जेई का कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहा हूं, ओनली पर्टेनिंग टू नीट. ठीक है, यू कैन चेक आउट द नीट सिलेबस, उसमें सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ये सब ठीक है, इसलिए हम लोग उसको कर रहे हैं. नाउ दैट डजंट मीन अभिषेक कि मैं आपको डरा रहा हूं कि ये सवाल आ जाएंगे तो आप नहीं कर पाओगे. उल्टा व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि यार इट्स वेरी डूएबल. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर स्कैर्ड ऑफ दीस थिंग्स, बट वी टुगेदर कैन फिगर दिस आउट एंड बहुत चिल तरीके से हो जाएगा. चल, व्हाट डज 6 ppm मीन? 6 ppm मींस 6 parts of the solute in a million parts of the solution. Now you'll notice मैंने solution बोला because a million is so much bigger than 6. Whether I say solution or I say solvent, it does not matter. Only in case of ppm. ठीक है, मैं solution या solvent is the same यार, because million से तुम part कर, can you imagine like बूंद बूंद से ocean मिलता है, I know, but 6 part out of million parts, so it doesn't matter if I say solution or solvent. It is the same. ठीक है, okay, cool. Hey, cool blues, that's awesome that you're here. And another cat pic, huh? Hey, cool blues from Discord, that's awesome. All right, ppm parts per million. अविका, ppm यानी कि कहाँ लिखा है? अच्छा मैंने लिखा नहीं, parts per million, that's what this means. All right, so now अब क्या करें? What do we do now? I now explain what parts per million ppm is. देखो हम लोग थियरी भी साइड बाय साइड कर रहे हैं. What do I have? 0.05 milligram. अब इसको एक्सपोनेंट्स में लिखते हैं. I can write this as 0.05 into 10 power minus 3 gram, or I can write this 5 into 10 power minus 5 gram. दोनों चीज लिख सकते हैं. So I'll do that. The denominator I do not know. I know that 6 ppm is going to be equal to this. So ये denominator I'll take it as x gram of solution or solvent. It is the same thing in this case. ठीक है? Because when you do ppm, it doesn't matter if it's solution or solvent. Is equal to 6 by 10 power 6. अब इस मैथ से I take 10 power 6 to the other side. You'll see सेम ही तो आपके पास आ रहा है. It's the same equation that you're getting. ppm का definition क्या था? Parts per million, whatever part you have into 10 power 6. अब ये लिखने से, जो मैंने definition आपको बताया, ये लिखने से देखो चला गया दूसरी तरफ. अब दूसरी तरफ चला गया तो ये 5 into 10 power minus 5 times 10 power 6 divided by 5. This is the answer.
you have to put 8.33 gram of pani in 0.05 ulta. You have to put 0.05 milligram of solute in 8.33 gram of pani water to get 6 ppm solution. ठीक है? Cool? Hey, excellent work! Shalini and Jashan, loving it. Beautiful, beautiful. You guys are amazing. So, ऐसा मत सोचिए कि ये सेशन स्लो जा रहा है, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी आसान चीजें कर लें. वो है PYQs के लिए. I am preparing you for the hardest paper that could ever come in life, and also making sure कि you understand mole concept inside out. जैसे हमने solid state का किया था. Yeah, this series of practice questions is to teach you things. मैथ्स वाली छोटी मोटे सवाल वाली चीजें we'll do everything. ध्यान से करेंगे. डिनोमिनेटर में 6 होगा. Yes, डिनोमिनेटर में x होगा ना. देखो, because x is the unknown. This 6 comes in a denominator because of this. I have to equate the two equations. Okay, equate the two equations. That sounds funny. 6 ppm is the concentration that I know. What I know that it should be made from is 0.05 of microgram of the solute divided by some mass of solution. या तो solvent same ही है. That some mass I've taken to be x. Now x को उस तरफ चले जाओ. Take x to this side. 6 comes here. That's all that has happened. ठीक है? इसलिए आ गया 6 डिनोमिनेटर में. Yes, आर्यन. Absolutely. अभिषेक समझ में आया? लास्ट में कैसे आया? ओह अच्छा, आप मुझे बता रहे हो. You are not asking me. Yes, अभिषेक. You are right. माफ करना. अरे टीचर का यही तो एक what do you call it confirmation bias होता है. अगर आप कुछ बोलते हो तो लगता है कि आप पूछ रहे हो, बता नहीं रहे हो. But you're right. You're right, अभिषेक. Thank you. Neetified. 8.29. Huh? That's interesting. ये कैसे हो गया? But ठीक है. 8.33 whatever. कुछ आपने अप्रोक्सीमेशन लिया होगा. चलो एक सवाल लेते हैं जो I feel you should be able to do pretty quickly. What is the strength of 1.5 molar solution of HCl in gram per liter? All you have to do is convert molarity in gram per liter. Okay, तो आप ले लो solvent basis as 1 liter solution because दोनों में what is this? This is mole per liter. What is this? This is gram per liter. So literally all you've got to do is convert moles to grams and you're done. See? कोई नया फॉर्मूला नहीं है अभिषेक. एंड एवरीबॉडी एल्स हु थिंक्स कि मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ढेर सारे फॉर्मूले हैं. दैट्स नॉट द केस. कोई फॉर्मूला नहीं है. देखो, जस्ट राइट डाउन द यूनिट्स. टेक केयर ऑफ यूनिट्स एंड द यूनिट्स विल टेक केयर ऑफ यू. दिस इज व्हाट an amazing teacher in chemical engineering used to say. Anthony Raj, Sir Anthony Raj. That sounds like a knighted person, right? Sir Anthony Raj. It's a heavy name. Very cool chap. Yeah. He had this amazing sense of humor as well. I'll tell you about that another time. Ken, he would say that take care of units and they'll take care of you. So all we're going to do is take care of units. 84 is what Shalini says. 84, are you sure? 84 कैसे आया आपका? देखिए, what is the molar mass of HCl? HCl का molar mass होगा 1 plus 35.5 यानी कि 36.5 gram per mole. Okay, that's the molar mass of HCl. तो 1.5 मोल कितना होगा? 1.5 into 36.5 0.054. डॉक्टर माही, आपका नंबर इज ऑन टारगेट. दैट डेसिमल थोड़ा सा आगे पीछे हो गया. निखिल इज सेइंग 53.75. यस अभिषेक, दैट्स राइट. निखिल 54 होगा ना? एक बार मैं कैलकुलेटर में डाल देता हूं. 1.5 into 36.5 54.75. What if I do 1.5 into 35.5? अच्छा निखिल, आई नो आपने क्या किया. You took the mass to be 35 point something. The mass is 36.5. हाँ यार, कैलकुलेटर है मेरे पास. I am not ashamed to admit it. I am here to teach you. It's okay. कैलकुलेटर ले आओ, कोई टेंशन नहीं है. I know NEET एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होता है, बट मैं आपको ऑप्शन भी तो नहीं दे रहा हूँ. Pun intended, right? I'm not giving you options and option भी नहीं दे रहा हूँ. Both ways. Yeah. Good evening, Saloni. How are you doing? Long time. एक दिन is too long a time, right? Vijay, absolutely right. Dr. Mahi, सब लोग getting this one on the head. Vijay, Jepoline, Jashan, excellent, excellent. Abhishek, Nikhil, yes. So the answer for this is simply this, just 54.75. देखो, लग रहा था डरावना सा सवाल है. But all you've got to do is look at the units really carefully. So सारे सवाल में we have done maybe 5 questions now. कितने सवाल किए अभी? 1 2 3 4 5, अरे 6 7, कितने सवाल कर लिए हमने? बहुत सवाल कर लिए. 1 2 3 4 5 6 7 सवाल कर लिए. We have done 7 questions. You guys are very quick. We have done 7 questions in just 35 minutes. 40 मिनट्स में 7 सवाल किए. देखो इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है. 5 मिनट में एक सवाल किया है. दैट्स ग्रेट. और उसके बीच में हमने कुछ चीजें 2-3 बार भी पढ़ाई है. ठीक है, डूइंग वेरी क्विकली. देखो 6-7 सवाल में, 7 सवाल में ऑन ऑल दोस क्वेश्चंस आई फोकस ऑन द यूनिट्स. शुरुआत में लग रहा था कि देखो बहुत स्कैरी है, ये करना है, नथिंग, जस्ट द यूनिट्स. ऊपर नीचे यूनिट्स देखो, डूएबल.
ए विशाल, हाउ यू डूइंग? आसिफ, कूल शेड्स मैन। ये सवाल ट्राई करते हैं। अब हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन और ये परसेंटेज वेट, बेसिकली जो पूरा अभी हमने पढ़ा इन पिछले लास्ट 7 क्वेश्चंस, put it all together in this question, all of this one quick question. The mole fraction and the specific gravity. Specific gravity मतलब कि जो gravity of the substance with respect to that of water, ठीक है, of an aqueous solution of glucose is 0.1 and 1.11. So you can take this as gram per cc. You can take this as gram per cc. ठीक है, ये है 0.1 क्या? 0.1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन वाटर। ग्लूकोज कहां गया? हाईलाइट कर लेते हैं। ग्लूकोज का मोला मास आपको ऑलरेडी मालूम है, 180 ग्राम पर मोल। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपको निकालना है वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट तो है ही नहीं, वेट है क्योंकि यू नो मोल्स, मोल से निकालो वेट, वेट से निकालो वॉल्यूम, वेट से निकालो वेट ऑफ द डिनोमिनेटर एज वेल। ट्राई करोगे? शैल आई गिव यू अ मिनट? आई विल गिव यू अ मिनट, देन साथ में सॉल्व करेंगे। बेसिस में लिख देता हूं, लेट अस टेक द बेसिस टू बी 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये दिया हुआ है आपको मोल फ्रैक्शन। ओके, अगर मोल फ्रैक्शन दिया है मतलब 0.1 मोल है उसमें ग्लूकोज और 0.9 मोल है पानी। मोल फ्रैक्शन यही मतलब होता है ना, इसमें दो ही कंपोनेंट्स है, नथिंग मोर देन टू। ऑलवेज वी ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट टू कंपोनेंट्स, राइट? सो इट्स सिंपल। सो डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर सीसी। किस चीज की डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ दैट एंटायर सॉल्यूशन इज गिवन टू यू। मोल में हमने ले लिया कि बेसिस 1 मोल हो गया, तो इससे नाउ यू कैन गेट 1 मास ऑफ सोल्यूट एंड यू कैन गेट मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इन दोनों से तुमको मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, और इससे निकल गया, इससे मिल जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो चारों चीजें यहां पे हैं, 3 चीजें। वेट तो यहां पे डायरेक्टली निकल जाएगा न्यूमरेटर का, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, है ना? मोल्स इज 0.1, यस। 52.6, अरे ब्यूटिफुल विशाल, वाओ, impressive bro, 52.6, I love it, absolutely love it. Vishal thinks option A should be, I mean not option A, the first part of this question is 52.6%. Okay, bye Jashanji, take care. Abhishek, yes, total moles is 0.1 because मैंने मोल बेसिस लिया है 0.1 मोल सोल्यूशन। ये जरूरी है। अगर आप बोल रहे हो टोटल मोल 0.1 है, then that means that 0.1 मोल है ग्लूकोज का और 0.9 मोल है पानी का। That is what you have to say. Okay, मोल फ्रैक्शन 0.1 यानी कि 0.1 मोल ऑफ कितना? ग्लूकोज और 0.9 मोल ऑफ वाटर। ओके, कूल, यस, एब्सोल्युटली Kumar, absolutely right. So now let me write these things down for you. Saloni, you're absolutely right. आपने शायद 1-2 zeros और डाल दिए, but yeah, you're right otherwise. तो here are the definitions फिर से, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इधर डिनोमिनेटर सोल्यूशन, इधर भी डिनोमिनेटर सोल्यूशन है, इधर है वेट, इधर है वॉल्यूम। इसलिए मैंने बोला कि इससे निकल जाएगा आपका, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, बहुत क्रैम्प्ड लग रहा है, राइट? इससे निकल जाएगा मास, इससे भी निकल जाएगा मास, एंड इससे निकल जाएगा टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, उससे निकलेगा वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी दी हुई है आपको टू बी दिस। Okay, how do you guys get to 52? Let's do that. So the mass of the solute 0.1 into 180, mass of water is 0.9 into 18, whatever that number may be, right? ये हो गया 18 और 16.2, यानी टोटल मास हो गया 34.2, right? Let me get rid of all of this, क्योंकि यहाँ पे कुछ और चीजें आएंगी, ठीक है? इसको हम मिटा देते हैं। This was just to explain how things work. Any doubts, guys, so far? Yeah? Hey, you're right, Saloni, Kumar, you're right. What about ये B वाला part? Kumar, दूसरा वाला part बताओ। Japeline, absolutely right. 52.6 is the first one. But how do we get there? देखो, for the second part, which I think some of you are a bit hesitant about, volume कैसे निकालोगे? I have the mass. This is what? Mass of solution. I divide it by density. This is density of solution. This gives me the volume. Okay, 31.1. What is this thing? इसका what will be the unit of this one? Will it be liter or ml? Gram per cc. तो ये होगा इसका यूनिट ml, right? How do I know this? Because this density business 1.1 is gram per cc, तो इसलिए इसका यूनिट होगा ml. Is that okay? Once you do that, then you see कि अच्छा, this guy now is going to be how much? 18, दूसरा कलर यूज करें तो दिख ही नहीं रहा है, 18 divided by
34.2 into 100. What about this one? It's 100 and not 1000. This is going to be 18 divided by 31.1 into 100, which happens to be कितना होगा ये? दूसरा वाला कितना होगा? ml, absolute Abhishek, beautiful. 18 divided by 31.1 into 100. This happens to be 57.87%. ठीक है? And that's the answer to this one. Cool. That's it. That's it. Nearly 60. Nearly 60. Yeah. You could say nearly 60. Yeah, absolutely. Absolutely. I'm okay with that. I'm going to be probably the weirdest teacher in telling you I don't care so much about the final answer. Because I know यार you will figure it out. Process है जरूरी मेरे लिए. वो तो आप लोग practice से you will make sure you get the final answer. Because आप बहुत मेधावी लोग हैं. Look, this is a free class. Nobody is asking you to be here. You're making the effort of attending this class and listening to me, which means you are very, very hardworking. Okay? And you will figure this out. मेरा पूरा focus है to train you in the process so that when push comes to shove, आप लोग कोई भी पहाड़ you're able to scale. Okay? All right. Yes, Kumar, very calculative. I know, I understand. चलो, अगला सवाल देखते हैं. ये this is going to be slightly, what you call it, थोड़ा easier, so to speak, theoretically easier. ठीक है? You will notice मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं. अगर आपको फॉर्मूला देखना है ना, देखो ऐसे डरावने फॉर्मूले हैं जो किसी को पसंद नहीं है. देखो, do you like this formula? मुझे तो पसंद नहीं है. Look at all this. किसको पसंद है फॉर्मूला देखना? I have all this prepared, but I don't want to show you these things because these formulae are what scare kids away from mole concept. And mole concept is true love, yo. I don't want you guys to be scared of mole concept. It's a beautiful idea. इसलिए हम कोई फॉर्मूला दिखाई नहीं रहा. हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल चीजें कर रहे हैं. ठीक है? Once more कांचन, कौन सा वाला कांचन? चलो एक बार फिर से कांचन जी के लिए. इसमें है दो चीजें करनी. You have to get weight by weight and weight by volume. Now you have been given mole fraction as 0.1. अगर mole fraction है 0.1, मैं लेता हूं basis to be 1 mole of solution. When I take 1 mole of solution, I have fixed उसमें होगा 0.1 mole of solute, बाकी rest as water. बाकी कितना? 0.9 mole. Now that I have mole of दोनों, मैं दोनों के मास निकाल सकता हूं. दोनों के मास मतलब weight of solute तो निकल गया, weight of solution भी निकल जाता है दोनों को ऐड करके. That weight of solution दोनों को ऐड करके is this. ठीक है? This is weight of solution. ठीक है? तो इस आइडिया से मुझे ये पहला वाला कॉन्सेप्ट निकल गया. 18 by 34.200. नाउ वॉल्यूम कैसे निकालो? डेंसिटी पूरी दी गई है. नाउ डेंसिटी, डेंसिटी क्या करना है? टोटल मास लीजिए ऑफ द सॉल्यूशन 34.2 डिवाइडेड बाय द डेंसिटी. ओके, देन यू गेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. दैट्स इट. निकल गया आंसर. कूल. आई होप गुड डिफरेंट अवेका. कुमार, नो यू आर ग्रेट एट इट. you're great at it, Kumar. I'm telling you. क्योंकि देखो, I have an idea of how much time it takes to do things, and you're doing it pretty quickly, and you're getting it right. Right? That's an amazing thing. It's okay. Use a calculator. कोई फर्क नहीं पड़ता है. I don't care. Process से करो, आराम से करो. ठीक है? चलो. Okay. B, Kumar, you're great, bro. What are you saying? How can you hate something? You're good at this. ये भी सही है. ये लेक्चर कब खत्म होगा? आरती. जब चाहो खत्म होगा. अभी चलो तुरंत खत्म करें. I'm kidding. चले आरती 8:15 I hope. That's the usual time. मुश्किल लग रहा है क्या? You can tune out anytime, Aarti. I will not feel bad. You're being very kind. It's all right. Akshu and Kumar are both saying B. जैसे ही आए options, सब लोग हो गए जल्दी करने इस question में. That's good. Concentrated aqueous solution of 98% sulfuric acid by mass has a density given to you. The volume of acid required to make 1 liter of whatever solution is this. ठीक है, इसको कैसे करेंगे? How do you do this question? What is given to you? Mass by mass, right? तो मैंने लिख लिया क्या दिया है? 98 ग्राम H2SO4 in 100 ग्राम सोल्यूशन, ये दिया हुआ है. और डेंसिटी दी है टू बी 1.8 ग्राम पर ml. वॉल्यूम कितना होगा मैं तुरंत निकाल सकता हूं, तुरंत निकाल सकता हूं. इस सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम हुआ? ठीक है, अगर नाउ माय बेसिस, इफ माय बेसिस इज 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इफ माय बेसिस इज दैट, व्हाट डू आई गेट? आई गेट द वॉल्यूम टू बी दिस वैल्यू. जो भी हो वैल्यू ऐसा ही रख दो, कुछ मत करो, लीव इट लाइक दिस, लेट इट बी दिस. ठीक है. नाउ व्हाट डू आई डू? अरे 100 ग्राम में इसका वॉल्यूम होगा. अच्छा, इसमें कितने कितने मोल्स होंगे? मोल्स तो निकाल सकते हो, राइट? 0.1. अब मैं कर रहा हूं, दिस इज व्हाट माय बेसिस वाज. नाउ क्या है? व्हाट डू आई नीड टू मेक? दिस इज व्हाट आई नीड टू मेक. आई नीड टू मेक दिस मच अमाउंट एंड इतना मोल. मतलब कितना मोल होंगे? दिस इज सिंपली m into v. मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दिया है. मोलैरिटी वॉल्यूम टेल्स यू मोल्स, बिकॉज लुक,
सोल्यूशन कैसे बनाओगे तुम? यू विल टेक द इनिशियल सोल्यूशन जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, उसमें तुम पानी ऐड कर जाओ, यू विल कीप एडिंग वाटर 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 टू इट, राइट? और आप लोगे एसिड, उसमें पानी बहुत है, डोंट वरी अबाउट द वाटर। इन दिस केस बोल रहे हैं कि पानी बहुत है, आप एसिड फिगर आउट करो कितना ऐड करना है। मतलब यू हैव टू फिगर आउट हाउ मच ऑफ दिस सॉल्यूशन टू ऐड टू वाटर टू एंड यू मेक इट अप टू 1 लीटर। देखो क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, थोड़ा सा मैंने एसिड ऐड किया, फिर उसमें पानी ऐड कर देगा टू मेक इट अप टू 1 लीटर। लैब में करते हैं ना, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। खैर, सो इतने पूरे सॉल्यूशन में पानी ऐड करने से द अमाउंट ऑफ HCl is H2SO4 is not going to change. H2SO4 कितना होगा? It will be the same as it was before. इतना था, कितना? M into V, which is 0.1 mole. Okay. So 0.1 mole कितना होगा? ये 100 ग्राम में इतना था, ठीक है? Whatever this is, 100 ग्राम is this. 100 ग्राम had 2 moles, right? Sorry, 90 grams 1 mole. 100 ग्राम में था 1 मोल. So इसमें कितना होगा? So 98 ग्राम is this much. 9.8 ग्राम में कितना होगा? 9.8 ग्राम is basically 0.1 mole. That's a small shortcut that I took here. 10 by 1.8, which is the answer 5.55, है ना? Yes, कुमार, बनाया? कल तो बनाया? Chemistry is not hard, यार. Come on, दिल पे. Chemistry is chemistry. अब क्या करूँ? It's like one of those things that you gotta do. You guys find bio easy. मुझे bio बहुत मुश्किल लगता है, right? So it's a matter of perspective, right? I'm being real with you. मुझे bio infinitely hard लगता है. I had to record bio once, and no, I agree. आपको hard लगता है तो लगता है. I'm not discounting that. I'm just saying it's a matter of perspective. You're really good at bio, and you just feel यार chemistry मुश्किल लगता है. I'm okay at chemistry, but मुझे bio बहुत ज़्यादा hard लगता है. And I feel like it's an alien language because I never studied it, right? So एक barrier होता है. In your case, you have to study chemistry. In my case, I can get away with bio नहीं करने में, ठीक है? I can get away with it. So I'm here to help lower that barrier, that activation energy lower करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं. There you go, chemistry puns right there. ठीक है? So look at this. What I'm trying to sell to you is don't substitute till the end. देखो, the examiner will try to help you. Now this is the examiner trying to help you. 10.10 100 by 18 था, अभी देखो 10 by 1.8 हो गया. अब कुछ बदला ही नहीं, आंसर बहुत जल्दी से 5.5 आ गया. या फिजिक्स हार्ड है, ओके कूल, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है. सलोनी एब्सोल्युटली राइट, ठीक है. या कुमार, वी डिड मेक अ वीडियो ऑन दिस यस्टरडे. मैंने कल एक लाइव सेशन किया था विशाल. वी डिड अ प्रीटी लॉन्ग गुड फन सेशन. व्हाट वी विल डू इज द जनरल प्लान. आई स्टार्टेड दिस सेशन आल्सो विद दैट, मे बी यू मिस्ड इट, कि हमारा प्लान ओवर द नेक्स्ट वीक विल बी टू टीच यू द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट्स. वी विल फिगर इट आउट. और पी ब्लॉक है नहीं है, हमने कल बहुत डिटेल में बहुत बताया था आपको कि कौन सी चीजें हट गई हैं फॉर श्योर. And I told you, यार P block पता नहीं है कि नहीं, looks like नहीं है, but we'll get back to you. So give us a couple of days time. We're just verifying our sources, okay? Practical chemistry थोड़ा extra लग रहा है, but JEE के आपके जो दोस्त थे, आपके counterparts, they've been doing it for a long time, so we have material prepared for it. We have great sources for it. Don't worry, we've got you covered on that. हम लोग करेंगे. नीट में बहुत समय है, धीरे धीरे करेंगे, बहुत टाइम है. इट्स अ मैराथन, राइट? हर चीज हम लोग एक दिन में करने का टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए. We'll do it. We will make sure that Aakash BYJU'S has you covered. Don't worry about that. पक्का, ठीक है. अगला सवाल देखें. अरे वाह सूरज, केमिस्ट्री इजी बट डॉक्टर इज बिजी. वाह वाह, शायरी हो गई. सुनिए, पीडीएफ मिल सकता है सिलेबस का. अक्षु, पीडीएफ तो है यार, अभी मैंने डाला था. जस्ट गिव मी अ सेकंड, वी विल कंटिन्यू दिस. आई थिंक एक दो सवाल और कर सकते हैं. कितना टाइम है? 5 मिनट है, एक और सवाल कर लेते हैं. लेट मी जस्ट क्विकली गिव अक्षु द पीडीएफ ऑफ द सिलेबस which is on our telegram group, so I'm just going to give you that. Hold on, copy post link, and here you go. Okay, that's what you get. You just copy paste that and do it. चलो एक और सवाल कर लेते हैं, then we call it a day. कितने सवाल कर लिए? You want a count of how many questions we've done so far? We have done 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सवाल कर लिए हमने. यार देखो, अगर आप 10 सवाल कर रहे हो 1 घंटे में, और वो भी इतने प्यार से, और ये ऑल्सो लर्निंग, और क्या चाहिए लाइफ में, राइट? खैर, ये वाला देखते हैं. मोलैरिटी ऑफ अ 4% NaOH solution by weight having a density of 1.2 gram per ml will be. ml is the same as cc. सलोनी, वाह, सही हो. अक्षु, that's the thing. NEET Aakash Digital is the Telegram ID. My Telegram ID is I Teach Chem, but I'm not very active on it. If you guys have any chemistry out, you can ping me. But if you want any updates from the channel, it's NEET Aakash Digital. That's right there. This is me on what do you call it, on Telegram. सवाल ट्राई करो दोस्तों. 5 मिनट बाकी हैं. You have another session at 8:30. नहीं, actually you don't have another session. किसी को और लंबा रुकना है तो we can do a longer session also आज. आलिया, कौन सा क्लास है? गेस करो आलिया. कमजोर कड़ी
सर बायोलॉजी वेरी इजी. ओके, दैट्स ग्रेट. कोई सबसे हार्ड नहीं आता. दैट्स ऑसम. दैट्स ऑल. गेस करो आलिया, व्हाट सब्जेक्ट इज दिस, व्हाट क्लास इज दिस? The molarity of 4% NaH solution by weight having a density of this would be what? Molarity का definition क्या है? Total moles by total volume, right? Moles of what? Moles of solute, which is NaOH divided volume in liter. And density is 1.2 gram per cc ये दिया हुआ है. अब इन दोनों को कैसे आप लोग फिगर आउट करोगे? मोलैरिटी निकालनी है, which means I have to get to volume. Okay. हाँ. ओ 4% भी दिया हुआ है. 4% का क्या मतलब है? 4% का मतलब है 4 ग्राम NaOH is 100 ग्राम सोल्यूशन. तो मास है, ओके, वॉल्यूम निकालना है और डेंसिटी है. तो देखो इन दोनों में रिलेशनशिप है. बोथ ऑफ दीज आर रिलेटेड, राइट? हाउ? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम आई डोंट नो, सो वॉल्यूम इज सिंपली व्हाट? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. जस्ट डू दैट एंड यू गेट द वॉल्यूम. 4%. अच्छा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल्स में ना. सो यू डिवाइड दिस बाय द मोलर वेट. यू गॉट टू कन्वर्ट दिस टू मोल. दैट्स इट. सो जो न्यूमरेटर है 4 ग्राम को कन्वर्ट करो इन मोल्स. डिनोमिनेटर है 100 ग्राम को कन्वर्ट करो लीटर्स में. हो गया खत्म सवाल. हो गया सवाल. 11th पहला चैप्टर आ गया. यस, गुड जॉब आलिया. 11th का पहला चैप्टर. चैप्टर 1 2 आई मीन आई डोंट नो नंबर, बट बेसिकली इसको सम बेसिक कांसेप्ट केमिस्ट्री बोलते हैं, राइट? मोल कांसेप्ट इज व्हाट आई कॉल इट. Everybody calls it. It's not my term. Everybody calls it. 1.6 molar, 1.6 molar. चलो देखते हैं. 1.6, 1.8. Okay. But दोस्तों 1.2 माई. Okay. देखो, एक छोटी सी बात है. छोटी सी बात है बस जरूरी बात है. ठीक है. जब आप लिखो मोलैरिटी, लिखो कैपिटल M. When you write small m, it's something called molality, जो हम लोग करेंगे अगले सेशन में. ठीक है. खैर, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी 100 बाय रो, व्हिच इज दिस वैल्यू राइट हियर. अब बचा पार्ट लास्ट वाला. रुको, अगर टेलीग्राम आईडी चाहिए फिर से बता दूंगा. दैट्स ओके. ये इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. 4 ग्राम डिवाइडेड 40 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम. एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल थिंग. लुक एट दिस. कुछ बचा ही नहीं, सब हो गया कैंसिल. देखो, एग्जामिनर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. दे मेक योर लाइफ इजी. सब हो गया कैंसिल. बचा क्या? हीरो. फटा पोस्टर निकला हीरो 1.2. देखो बचा क्या? मोल पर लीटर. बाकी एवरीथिंग गेट्स कैंसिल आउट. ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इजंट इट? ओके. अरे अरे अरे, चिल 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 दोस्तों. कॉपी कोई नहीं कर रहा है. सब लोग इट्स ओके. कॉपी करा तो क्या फर्क पड़ रहा है? अभी कर लो. एग्जाम में कभी नहीं करना. बी एथिकल. यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स, यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफ द नेशन. कभी भी हमेशा बी एथिकल. दैट्स माय बिग रिक्वेस्ट टू यू. खैर, दैट्स इट. लेट्स कॉल इट अ लास्ट क्वेश्चन. मेरे पास हैं 3-4 सवाल और, बट वो अगली बार कर लेंगे. आई हैव एग्जैक्टली 1 2 3 4 मोर क्वेश्चंस, बट इट्स ओके. और सेशंस करेंगे. एनीवे, मेरा प्लान था और भी 1-2 करने का. विल डू इट नेक्स्ट टाइम. नो टेंशन व्हाटसोएवर. मजा आया है ना? आई रियली लाइक डूइंग दिस विद यू. या, बिकॉज़ इट फेल्ट लाइक इट वाज पेनफुल एंड टॉर्चर आपके लिए इनिशियली, बिकॉज़ कोई भी एक्टिव नहीं था चैट पे. लाइक अरे यार, डर रहे थे. सो इट्स गुड दैट ओवर द सेशन यू गॉट मोर एक्टिव. इट्स ब्यूटीफुल. नहीं विशाल, it's okay. It's possible that everybody made the same error. That's also possible. Continue करें. पूनम, are you sure? I think people would want to get off. 4 सवाल और हैं. क्या करना चाहते हो? अगली बार करते हैं या अभी करना चाहते हैं? Give me a show of hands. Okay, बाय बोलने लगे लोग. चलो अगली बार ही करते हैं. 8:15 हो गया ना? I like sticking to time, right? I'm one of those guys जो टाइम है उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. So if I'm gonna be come at this time, I will always be there. and खत्म करना है तो I will try my best to close it. So unless कुछ बहुत बड़ा दिक्कत है, I'd like to stick to that time. Okay, चलो next time मिलते हैं. मजा आया as always. मोल कॉन्सेप्ट मुझे तो आता है. I hope आपको भी by the end of these 2-3 sessions मजा आए. Okay, as always, if you have any doubts, feel free to reach out to me at I Teach Chem. I'll try and help you out and point in the right direction. Okay, bye. Good night. Have a great weekend. हम लोग मिलेंगे next week. We'll talk more about everything that NMC has been up to, right? The reduced syllabus वो तो मालूम है, but what are we going? What is actionable? हम लोग क्या करें as a community to make things work for you? We'll figure out practical chemistry का पूरा नक्शा क्या है, how to navigate it. We'll start off with salt analysis और वो जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वो सब निकालने का परसेंटेज प्योरिटी है, वो सब चीज करेंगे हम लोग. या ओके. वाह वाह वाह, नाउ एवरीवनस वेरी एक्टिव. चलो सेशन खत्म हो रहा है, सब में एनर्जी आ गई. खाने जा रहे. बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी. हैव अ ग्रेट वीकेंड. बाय, टाटा. Aarti, I'll be back on Tuesday.
My sessions are Tuesdays, Thursdays, Saturdays, and Fridays. That's what I do right now. Chalo, bye. Tata.